আচ্ছা, পুরুষোত্তম যোগ, ঠিক আছে, 15 অধ্যায় শ্লোক নম্বর 10। আজকে যে অধ্যায়টা বলবো সেটা হচ্ছে পুরুষোত্তম যোগ 15 অধ্যায়ে, হ্যাঁ, 10 নম্বর শ্লোক বলছি। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জনম বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। উৎক্রামন্তম স্থিত ব্যাপী, বলো। উৎক্রামন্ত স্থিত ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী উৎক্রামন্ত স্থিত ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী উৎক্রামন্ত স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। আচ্ছা, আমি পুরো বলছি, কেটে কেটে বললাম, এবার পুরো বলছি, ঠিক আছে। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম, বলো। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম উৎক্রামন্ত স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। আচ্ছা, উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। বলো একজন, ওকে, এনিওয়ান বলো, পৃথিবী বলো। উৎক্রামন্তং স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। আচ্ছা, আমি ওটা আরেকবার বলে দিচ্ছি। উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান, গস দুন্তনা একা দুন্তনা চলে আসবে, গুণান বয়সে তম গুণান্বিতম হবে, ঠিক আছে। বিমূঢ়া বয়সে মহস দর্শন একা আছে, বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। ঠিক আছে, ওকে বলো, একজন বলো। উৎক্রামন্তং স্থিতং ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম, হ্যাঁ, ভেরি গুড, বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। ভেরি গুড। নাও। উৎক্রামন্ত স্থিত ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। আচ্ছা, ওকে বলো। উৎক্রামন্তং স্থিতং ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। উৎক্রামন্তং স্থিতং ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। বলতে পারবেন? উৎক্রামন্তম ব্যাপী ভুঞ্জানাং বা স্থিতম ব্যাপী উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম বা গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। জ্ঞান চক্ষুষঃ। পৃথিবীর লাস্ট বলো, আচ্ছা, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলছি, একবার দেখে নাও। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলি। উৎক্রামন্তম, বলো।
उत्क्रामन्तम দেহত্যাগ করে देहत्याग करे স্থিতম স্থিতম দেহ স্থিত देहस्थितो বা অপি বাউপি দুটির মধ্যে কোনো একটি দুটির মধ্যে কোনো একটি ভুঞ্জানম ভুঞ্জানম উপভোগ করে উপভোগ করে বা বা অথবা গুণান্বিতম গুণান্বিতম প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন বিমূঢ়াহ বিমূঢ়াহ মূর লোকেরা মূল লোকেরা ন না না অনুপশ্যন্তি অনুপশ্যন্তি দেখতে পায় দেখতে পায় পশ্যন্তি পশ্যন্তি দেখতে পান জ্ঞান চক্ষু সহ জ্ঞান চক্ষুষঃ জ্ঞান চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আচ্ছা আচ্ছা অনুবাদটা আমি একবার দেখছি কি লেখা আছে। মূর লোকেরা দেখতে পায় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী দেহ সে উপভোগ করে, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমস্ত কিছুই देखते पान। इसका मीनिंग्स है जो जो लोगों को मालूम नहीं है, मूर्ख जो गीता का बारे में व शास्त्रों के बारे में एकदम भी मालूम नहीं है, उसको भगवान मूर्ख बोलता है, मतलब मूर्ख बोलता है। भगवान ने बोल रहा है जो वो मूर्ख आदमी लोगों को मालूम ही नहीं होता है आदमी कैसा देह त्याग करता है, मतलब आदमी को मृत्यु होने का साथ साथ कैसे वो मर जाता है और बॉडी पड़ रहता है, आत्मा चला जाता है, ये आदमी को मालूम नहीं है, वो मूर्ख आदमी को मालूम नहीं है। और ऑपोजिट वाले जो है जिसको कृष्ण भक्त में मालूम है, ज्ञान चक्षु विशिष्ट व्यक्तिगण जिसको कृष्ण बारे में मालूम है, शास्त्रों के बारे में मालूम है, वो उसको मालूम चलता है जो कैसे आदमी मारा जाता है एवं उसका बॉडी मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है। वो जिसको मालूम है वो शास्त्रों के बारे में पूरा मालूम होगा, उसको ही ओनली मालूम होगा। भगवान इसलिए उसको ज्ञान चक्षु विशिष्ट व्यक्तिगण मतलब उसका आंखें जैसा ज्ञान भरा हुआ है शास्त्रों के में, शास्त्रों का बारे में, ठीक है, और शास्त्रों के बारे में मालूम होता है। और मूर्ख आदमी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो लोग ऐसा वैसा कुछ भी मन गड़ा कर देता है, ठीक है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं वो लोगों को ये जो देह त्याग करने का बाद प्रकृति का ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है उसमें उसका जो गुण है वो गुण का बारे में वो परवर्ती देह मतलब उसको मालूम ही नहीं हो रहा है। अभी वो सोच रहा है ये प्रकृति के टाइम पे भी आदमी जन्म हुआ इसमें मर जाएगा, बस इसमें खत्म है, वो लोगों को इतना सोच होता है क्योंकि जन्म नहीं होगा इधर ही आयस करो ऐसा सोचने का। किंतु भगवान इधर क्या बोल रहे हैं ये वो जीव जो है जो मूर्ख आदमी है उसको कुछ मालूम नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान खुद बोल रहा है जे उन्मुक्तम स्थितम व्यापी भुंजनवा गुणान्वितम विमूढ़ा मतलब मूर्खो भगवान से विमुख है। हाँ नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष है जिसका ज्ञान होता है जो आंखों में पूरा पूरी वो मालूम होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता मूर्ख होता है, उसको मालूम नहीं होता है, ठीक है। तात्पर्य में देखता हूँ জ্ঞান চক্ষু সহ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান ব্যতীত কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে জীব তার বর্তমান দেহটা ত্যাগ করে অথবা পরবর্তী জীবনে সে কি রকম দেহ ধারণ করে, এমনকি একটিও বুঝতে পারে না কেন সে একটি বিশেষ ধরনের দেহ অবস্থান করছে। এগুলি উপলব্ধি করবার জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন যা সদ্গুরুর মুখরাবিন্দ থেকে ভগবদ্গীতা ও তদনুরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়। इसका मीनिंग्स है ज्ञान चक्षु सह बहुत तात्पर्य है इसमें, मालूम है। इसलिए बताया गया जिसका पास ज्ञान नहीं है वो वर्तमान जो अभी चल रहे हैं ये देह लेके वो लोग व्यस्त होता है, खाली खाना पीना सोने का यही, उसका परवर्ती जीवन में वो क्या होगा नहीं होगा उसका कुछ मालूम नहीं होता है। इसलिए उसको भगवान इसलिए उसको बोल रहा है जो देह त्याग करने का बाद वो लोग कहाँ जाएगा, वो लोगों को मालूम ही नहीं होता है जो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। और जो लोगों को ज्ञान मतलब ज्ञान है वो सद्गुरु का पास से वो ज्ञान अर्जन करता है और भगवत गीता अनुसरण करने का श्रवण करने का माध्यम में उसको मालूम होता है। और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो लोग को वर्तमान में ही चलता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता है।
खाली खाने का, सोने का, सेक्स एंजॉय करने का और संसार पालन करने का। 519 ठीक है, मिला? पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम 10 নম্বর। এই সমস্ত তো এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার শিক্ষা যিনি লাভ করেছেন তিনি অত্যন্ত भाग्यवान। जो लोग भगवत गीता का बारे में शास्त्र अध्ययन करता है, सत्संग करता है, वो लोग बहुत भाग्यवान होता है। क्या बोलते हैं, भाग्यवान होता है, जो भी हो, हाँ, नसीब वाला होता है। तो প্রতিটি জীবী কোনো বিশেষ অবস্থায় তার দেহত্যাগ করছে, কোনো বিশেষ অবস্থায় সে জীবন ধারণ করছে এবং জড় প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে কোনো বিশেষ অবস্থা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে। পরিণামে সে নানা রকমের সুখ ও দুঃখ ভোগ করছে। যারা অন্তিম কাল ধরে কাম ও বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে তারা কেন এক বিশেষ দেহে অবস্থান করছে এবং কেউই বা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেটি তাদের বোধগম্য হয় না, কিন্তু তারা হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানে প্রকাশ হয়েছে। তিনি দর্শন করতে পারেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং দেহ সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে आनंद अनुभव करছে। इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ, अभी बांग्ला में बोला, अभी इसका मीनिंग्स बताता हूँ। हर जीव ही जन्म होता है, उसका बाद छोटा होता है, छोटा से बड़ा, बड़ा से वो संसार करता है, उसका बाद वो उसको मृत्यु हो जाता है, देह त्याग हो जाता है, विद्या हो जाता है। और ये अवस्थान में ये लोगों को मतलब जड़ जागृति में मोहच्छन्न हो जाता है। जो लोगों को शास्त्रों के बारे में मालूम नहीं होता है वो लोग मेटेरियल जगत में वो लोग माया का जाल में फंस जाता है। तो वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मतलब सुख मिलने को वो लोग कोशिश करता है। इंद्रिय सुख जो पंचम इंद्रिय है हम लोग मैं बताया था, और 6 इंद्रिय जो है वो मन है। पहले ही बताया 6 इंद्रिय जो है वो मन है। मन सबसे डेंजरस है। ओके, इधर उधर भागता है। तो इसलिए तो इंद्रिय सुख में वो लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब काम चला लेता है। कैसे करता है वो लोग, इसलिए सुख एंड दुख को दोनों ही आ जाता है। मिलता ही है। অনন্তকাল ধরে কামনা বাসনে মোহিত হয়ে देह त्याग करे হয়। तो वो लोगों को देह त्याग करने का बाद वो लोगों को उपलब्धि नहीं होता, वो लोग भ्रष्ट हो जाता है, बोधगम्य नहीं होता है और दिव्य ज्ञान वो लोगों को प्राप्त भी नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों को शास्त्रों के बारे में मालूम नहीं है। भगवान को सिर्फ कुछ मालूम नहीं। उसका एक ही चिंता होता है वो लोगों को, जो खाने का, जो मिलेगा वो खाने का। जो भगवान ने बताया गया जो नहीं सात्विक खाना खाना चाहिए वो लोगों को नहीं होता है। वो लोग खाली सोचने का कैसा कैसा खाने का, कैसा कैसा पकाने का ऐसा। तो इसलिए भगवान बता रहा है जो वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख से ज्यादा दुख को मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, क्योंकि दिमाग फटकते रहता है। और क्या होता है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन होता है। मानसिक रोग। हाँ, डिप्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए वो लोगों को लोभ होता है, ये चीज ले लो, ये चीज करो, वो करो, ऐसा लोभ होता है। इसलिए वो लोग को डिप्रेशन ज्यादा होता है, वो लोग टेंशन में हो जाता है ज्यादा। ठीक है, इसलिए वो लोगों को दुख को ज्यादा होता है। दिव्य ज्ञान नहीं होने का साथ साथ ये चीज मिलता है, मालूम है। दिव्य ज्ञान होगा तो थोड़ा टेस्ट मतलब उसका थिंकिंग थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर दिमाग में कम होता है। तो उसको मतलब- मालूम है, जानकारी मिलेगा ना जो भगवान क्या है, हम कहाँ पद में है, वो मालूम पड़ जाएगा भगवान के बारे में। नहीं तो यही आसक्ति इसमें हो जाएगा जड़ जगत में। जड़ जागतिक में ज्यादा आसक्ति रहेगा ना, ज्यादा आदमी लोगों को टेंशन ज्यादा होता है, टेंशन बोलता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो दिव्य ज्ञान का बारे में दर्शन होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हरिनाम महामंत्र जप करना चाहिए। भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण भी परफेक्ट रखना चाहिए। और उसके बाद बताता हूँ, তিনি দর্শন করতে পারেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং দেহ সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে
আনন্দ অনুভব করছে। এই জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে বদ্ধজীব এই জড় জগতের দুর্দশা ভোগ করছে। তাই কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নতি সাধনের ফলে যাদের চেতনা খুব উন্নত হয়েছে তারা জনসাধারণকে এই জ্ঞান দান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ বদ্ধজীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তারা মর্মাহত হন। বদ্ধজীবের কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণ চেতনা লাভ করা এবং জড়জগতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন करा। ये जैसा है, भाई को कृष्ण भक्ति का मालूम पड़ गया। हम लोग जड़ जागतिक में आसक्ति है, हम लोगों को कुछ उतना मालूम नहीं है, तो इसके बारे में इसने जो बताया भगवान वो हम लोगों को फोकस करे। जैसे हम लोग भगवान के पास जा सकता हूँ, गलत रास्ता में नहीं जा सकता। जैसे सही रास्ता है भगवान जैसे बोला वही शास्त्र अनुसार हम चलेंगे तो फिर हम लोगों को ही अच्छा है। उसका कुछ नहीं जो वो हम लोगों को करेगा तो कुछ ऐसा है, लेकिन हम लोगों को भला चाहने के लिए कर रहे हैं। अभी क्या जो लोगों को शास्त्रों के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम होता है वो लोगों को क्रोध हो मतलब ट्राई आ जाता है, मतलब वो लोगों को इसलिए मर्माहत होता है जो कोई ये लोग आदमी लोग क्या कर रहे हैं, दुख हो जाता है उसका मन में। तो इसलिए वो शास्त्रों में उसको जो ज्ञान होता है वो थोड़ा थोड़ा भी हो वो दूसरा को बांटता है। यही हमारा कर्म है, जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण का उपदेश, मतलब क्या हरिनाम का उपदेश बोलने का, वो हमारा कर्तव्य है। हम लोग भूल जाता है इसलिए हम लोग इधर उधर फटकता है। तो ये जो बद्ध जीव है, ये मेटेरियल के जो जीव है ये दुर्दशाग्रस्त है, ये लोगों को मालूम नहीं चल रहे जो ये क्षणस्थायी है। हम लोगों को थोड़ा टाइम के लिए मिला, ये भगवान का कारागार भी बोल सकते हैं। हम लोगों को थोड़ा टाइम के लिए मिला और हम लोगों को जो मतलब काम करने का बाद फिर रिटर्न भगवान का पास जाने का। तो हम लोगों को कोशिश करना है जो कृष्ण भावना मितो मतलब कृष्ण भावना मतलब प्रचार रखने का और सत्संग रखने का, और जैसा सैटरडे एंड संडे 2 दिन प्रोग्राम होता है ऐसा आने का, और क्या करने का, हम लोगों को इसमें धीरे धीरे ऊपर आने का चांस रहेगा। और जो लोग बद्ध जीव है उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझाने का। ज्यादा एडवाइस देगा तो वो लोगों को दिमाग में नहीं आएगा, किंतु भगवान इसमें क्यों बता रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो लोगों को एकदम भी मालूम नहीं है। अगर कोई आदमी लोगों को कुछ भी कोई चीजों का मालूम नहीं हो, उसका पास वो चीजों के बारे में झट से ज्यादा बोलेगा, उसको कुछ मालूम नहीं होगा। तो धीरे धीरे कम से कम बोलना पड़ेगा। इसमें क्या सबका भला है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा बढ़ गया है इसमें आसक्ति में, जो दुनिया का लोभ क्रोध काम में ही ज्यादा व्यस्त है। भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोग दूसरों को देंगे तो जो परिवेश है हमारा माहौल थोड़ा अच्छा होगा। ये क्या माहौल हमारा कैसे माहौल रहता है, लेकिन थोड़ा 2-4 आदमी को बोल बोल के थोड़ा एक संग बनाया हम लोग। ऐसा भी नहीं होता था, वो दूसरे के पास हम लोग जाके मतलब भाई जाता था। पहले हम 2 बार गया था उधर से, वो भक्त प्योर भक्त था, भगवान के पास जाता था हर संडे को। वो भाई अभी गाँव चला गया, उसके बाद लाके हम लोग एक गीता सबको बांट मतलब सबको पैसा जो जिसका है वो देके सबको दिया है। थोड़ा बहुत 1 मिनट भगवान के लिए हम लोग 24 घंटा मिला है हम लोगों को। भगवान हम लोगों को इतना कुछ दिया है, तो उसके लिए हम लोग 10-15 मिनट कम से कम भगवान को सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके भगवान के पास प्रार्थना करेंगे जो हम लोग सही पद देख सकता हूँ, भगवान के पास जा सकता हूँ। क्योंकि ये जीवन क्षणस्थायी है, कुछ टाइम के लिए दिया है। ये दुखालय है, जैसे दावालय बसानालय सब कुछ एक लय है, ये एक दुखालय, इसमें कुछ सुख नहीं है। हम लोग सोचता हूँ परिवार लेके मौज करेंगे, पैसा कमा के लेके जाएंगे। पैसा भी कमाना जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सत भावों से कमाओ और जो भी अर्पण करो भगवान का सेवा में अर्पण करो। और एक बात है, जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण का बारे में। हम लोग तो ऐसा दूसरा का बारे में भी बोलता हूँ, जैसा हमारा काम वगैरह ये भी होता है, बिजनेस होता है, जिसका जो काम है वो करता हूँ। और भगवान का बारे में भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और हम लोगों को एक आचार भी होना चाहिए। जैसे मैं पहले बोला था एक श्लोक में, तद विधि परिपाते न परिपोषणे न सेवया, 3 अध्याय 40 नंबर श्लोक ऐसा कुछ होगा। तो उसमें क्या बात है, जो हम लोगों को शांत होना चाहिए, स्वभाव का एक नेचर होना चाहिए।
एक आदमी देखेगा मालूम होगा कृष्ण ये भक्त है, अच्छा है, भगवान ये का आदमी अच्छा है। अच्छा है, मतलब भगवान का कुछ गुण होगा तो फिर अच्छा मिल सकता है। ऐसा नॉर्मल आदमी को कोई अच्छा आप देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो भेज खाएगा भी फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तेज होगा, गुस्सा होगा। जैसा हम लोग आहार करता हूँ ना वैसा जीव में, वैसा ही वो होता है। जैसे आहार ऐसा मन बोलता है ना, तो इसलिए हम लोगों को भी नेचर का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ज्यादा बहुत ज्यादा ऊंचा का बात नहीं होना चाहिए। और एक बात है, कंपनी का अंदर अगर होगा कोई काम का होगा, जैसा सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, उसका एक पोस्ट होता है, वो लोगों को थोड़ा आवाज होना भी चाहिए, तो उसको ख्याल रखना पड़ेगा। कारीगर का भी थोड़ा थोड़ा सिस्टम होगा और सुपरवाइजर का भी एक सिस्टम होगा, सबका ही एक सिस्टम रहेगा। ऐसा नहीं है जो एकदम वो आदमी को मालूम नहीं है शांत हो जाएगा, वो तुमको पकड़ लेगा। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो मतलब पोजीशन हिसाब से करना चाहिए। और हम सत्संग जिस टाइम होगा उस टाइम शांत रहना चाहिए, और नेचर का थोड़ा लिमिट रहना चाहिए। काम करते हुए भी थोड़ा नेचर हल्का रखना चाहिए, और भगवान का नाम लेते हुए रहेगा, और दूसरा आदमी देखेगा, आपको देख के फॉलो करेगा, ये आदमी अच्छा है, तो अच्छा है बोलेगा, उस टाइम आपका नेचर में वो आने को सोचेगा, तो उस टाइम आप थोड़ा बताएगा, तो उसको भगवान का भक्त होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों को बोलना चाहिए, और जिसको देखेगा उसको ही बोलना चाहिए शास्त्रों के बारे में। और हम लोगों को जो दिया गया वही इतना ही काफी है। ये श्लोक में जो बताया गया वो यही है। अभी किसके क्वेश्चन है कोई? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये बात है, यही बात है जो भगवान के बारे में हम लोगों को थोड़ा देख लो थोड़ा। काल के लिए रहेगा যজন্ত যোগিন চৈনম প্রসন্তাৎ মন্য বস্তিতম বস্তিতম যজন্ত হপ্পকিত তাৎ মানু নৈনম পশ্যন্ত চেতসহ যজন্ত যোগিন চৈনম পশ্যন্তাৎ মন্য বস্তিতম যজন্ত হপ कित्तात मानो नैनम पश्चंत चेतसः। एक काल के लिए हम लोगों को श्लोक है, ठीक है। अभी जो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है थोड़ा श्लोक हार्ड है, ठीक है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा लेना पड़ेगा, फिर बाद में श्लोक चेंज करेगा। ओके। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गाओ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण